Hi everyone, welcome to Kanal's Academy. Okay, we have started chapter number 1, that is heredity and evolution. In the very first video, and that is the very first session of the chapter, we have covered all the name of the scientist and what were the achievements done by those scientists. I also reminded you that this chapter has a lot of roots, lot of basics stuck in the 9th standard. So we need to revise all those topics so that we can move further with the heredity part of the chapter. Evolution is a new concept that was not there in 9th standard. वो पूरा नया हम इस बार वापस शुरू करेंगे. But heredity हमने काफ़ी parts already cover कर दिए थे 9th standard में, उसी का continuation है. इस साल हम heredity का protein synthesis part समझने वाले हैं. Okay, proteins are synthesized. Synthesized का मतलब होता है produced. हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. वाई? बिकॉज प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी. एज वी नो, हर एक चीज़ हमारी बॉडी में प्रोटीन से बनी हुई होती है. तो ये प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है, जो खुफिया जानकारी है, दैट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए. प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए. प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? डीएनए की. और डीएनए किसके हिसाब से बनता है? डीएनए ये किसके हिसाब से बना पाता है? आरएनए. सो डीएनए एंड आरएनए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन प्रोडक्शन. Okay, before we start, what is the content of the textbook for the topic? I want you to cover up, brush up with the DNA and RNA as we discussed in the last lecture. Okay. DNA, that is deoxyribonucleic acid, is made up of many nucleotides. These many nucleotides, this is the structure of the DNA, and ये इतने इतने हिस्सों को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. नॉट दिस मच, छोटा छोटा इतना इतना हिस्सा, इतने इतने हिस्सों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स मेक अप डीएनए. न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या है? वी विल अंडरस्टैंड दैट. Okay. First thing, in the nucleotide we have sugar. Sugar which is pentose. Pentose मतलब क्या? 5 carbon. So sugar, that is pentose. Okay. Next we have phosphate group. That is presence of phosphoric acid. फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इसमें एसिड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है. नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन बेसेस. These nitrogen bases are of 2 types. Purines and pyrimidines. Purines में we have adenine and guanine. Pyrimidines में we have thymine and cytosine. So this is the structure, simple structure of DNA जो हमने 9th standard में पढ़ा था. That DNA is a double-stranded helical structure made up of many nucleotides. Each nucleotide comprises a pentose sugar, phosphoric acid, that is phosphate group, and nitrogen bases. Nitrogen bases are of 2 types, purines and pyrimidines. Purines is adenine and guanine. Pyrimidine is thymine and cytosine. A always pairs with T. Adenine always pairs with T with double hydrogen bond. Adenine will always pair with thymine. और बीच में जो 2 लाइन्स है मतलब क्या? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड.
and guanine will always, G with C, will always pair with cytosine, that is triple hydrogen bond. So adenine always pairs with thymine and guanine always pairs with cytosine. Double bond, triple bond. I hope this is understood to you. Okay. Now this was just the brushing up part. यही DNA है जो क्या करने वाला है अभी, जो अभी प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करने वाला है. अच्छा, DNA का कौन सा हिस्सा बेसिकली इन्वॉल्व होता है? DNA के सेगमेंट्स को, इसके सेगमेंट्स को कहते हैं, सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड एज जीन. क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ DNA को जीन. ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों को बोलते हैं जीन. यही जीन है जिसके अंदर क्या है? कोडेड इंफॉर्मेशन विच इज हेल्पिंग इन प्रोटीन प्रोडक्शन. नाउ DNA normally has all the information. In simple language, DNA has all the recipe, but it doesn't have the procedure and helping tools. Recipe है but tools नहीं है. तो as tools कौन help करेगा? RNA. RNA is ribonucleic acid. RNA, ribonucleic acid. Now RNA is made up of many components. Same. First of all, sugar, same, oxyribose. ठीक है. Then does it have pentose phosphoric acid, phosphate group? No. Basically it has sugar and nitrogen bases, that is adenine, guanine, cytosine and thymine की जगह uracil. So what we do is, ये already nucleotides यहाँ लिखा हुआ है. I will not write it again here. I will just write the difference. Right, इसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो नाइट्रोजन बेसिस में प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स तो है, बट डिफरेंस क्या है? एडेनाइन और ग्वानाइन तो प्रेजेंट है, बट थाइमीन की जगह प्रेजेंट है यूरासिल और साइटोसिन. सो A normally pairs with T, बराबर, but A T की जगह it is A C and G with, sorry, A with U and G with C. So thymine किससे replaced है? Thymine is replaced with uracil. Now RNA are of 3 types. Type 1 mRNA, that is messenger RNA, जो मैसेज पहुंचाता है कहाँ से कहाँ? DNA से mRNA तक. From DNA to mRNA जो मैसेजेस होते हैं, कौन से मैसेज है ये? All the genetic information. So जेनेटिक इन्फो जो DNA से mRNA तक लेके जाता है, मतलब DNA से इंफॉर्मेशन mRNA सेल के अंदर से बाहर लेके जाएगा. I'll explain this concept much more in detail. Right now we will just focus to the types of RNA. See, I am repeating myself. I am just brushing up what we know in 9th standard. Reason being, क्योंकि यहीं से कंटिन्यू करूंगी 10th स्टैंडर्ड का. एकदम टू बी कंटिन्यूड टॉपिक है ये, तो ये समझ में आएगा तो ही वो टू बी कंटिन्यूड हो सकता है. सेकेंड इज tRNA. tRNA इज ट्रांसफर RNA, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा. एंड द थर्ड वन इज rRNA, that is ribosomal RNA. So
3 टाइप्स क्या हो गए हमारे, mRNA, tRNA, rRNA। ये तीनों किस में हेल्प करेंगे, दे विल बी हेल्पिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस। तीनों के तीन क्या चीज में हेल्प करेंगे, प्रोटीन प्रोडक्शन में। किसकी हेल्प करेंगे, डीएनए की। सो ये डीएनए का स्ट्रक्चर और ये पूरा आरएनए का स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिलकर बेसिकली प्रोटीन्स बना रहे हैं। नाउ दिस प्रोसेस इन विच डीएनए is making proteins, is synthesizing proteins with the help of RNA is known as the theory of central dogma। ये पूरे concept को कहते हैं central dogma। What you will be doing is, as always, you take a screenshot of this and I want this in the notebook। ये चाहिए ही चाहिए, यहीं से notes तुम्हारा चालू होगा तो आगे जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में सिखाऊंगी वो समझेगा, वरना कुछ नहीं समझेगा। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक पेज का टॉपिक है, बट वो एक पेज का टॉपिक भी बच्चों को नहीं समझता है अगर वो ठीक से बेसिक्स ब्रश अप नहीं करते। तो द रीजन आई हैव गिवन अगेन ऑन दिस बोर्ड इज, जब मैं कंटिन्यू करूं तो ये सब चीजें समझे। जब मैं बोलूं mRNA आया था तो पता होना चाहिए mRNA कौन है, इट इज अ टाइप ऑफ RNA जिसका पूरा नाम है मैसेंजर RNA। जब मैं बोलूं डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप में कुछ ऐसा हो गया था तो पता होना चाहिए फॉस्फेट ग्रुप किधर है। तो जो भी चीजें मैं आगे बोलने वाली हूँ वो सब इससे रिलेटेड है। सो मेक श्योर यू आर राइटिंग दिस इन योर नोटबुक एंड लर्निंग एज वेल। ये सब चीज आनी चाहिए, ये 9th में ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, नाउ व्हेन वी आर डन विद दिस डीएनए का स्ट्रक्चर एंड आरएनए का स्ट्रक्चर, लेट अस गो अहेड एंड स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। शुरू कैसे होता है प्रोडक्शन, चलो। Okay, the theory in which protein is synthesized with the help of DNA by DNA and RNA is known as theory of सेंट्रल डोग्मा। तो ये सेंट्रल डोग्मा थ्योरी का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है डीएनए एंड विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंड आरएनए। सी, सेंट्रल डोग्मा उस चीज को बोलते हैं जो पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो T20 क्रिकेट होता है उसमें पावर प्ले का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि 20 ओवर्स का गेम है तो पावर प्ले प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हर दोनों इनिंग्स के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन प्रोडक्शन में जो मेन रोल है वो किसका है, डीएनए और आरएनए का। तो डीएनए आरएनए क्या होगा, सेंट्रल डॉग्मा। जैसे क्रिकेट के T20 इनिंग में पावर प्ले सेंट्रल डॉग्मा है, उसमें हमको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है। वैसे यहाँ पे सेंट्रल डॉग्मा क्या है, डीएनए और आरएनए का रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे हम प्रोटीन प्रोडक्शन समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। पूरा डिटेल में हम ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्या है, डीएनए एंड आरएनए, और ये प्रोसेस कैसे जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, आई जस्ट गिव इट अ रीडिंग टू द पार्ट दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज स्केच and explain the structure of DNA and various types of RNA।
आई हैव गिवन यू द फ्लो चार्ट डायग्राम, तुम 9th की बुक से देखकर प्रैक्टिस करोगे. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स and give names of some disorders. Okay, what do you understand by genetic disorder? जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर. दिस इज क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 का आंसर है ये. एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन which leads to abnormal functioning or protein production, protein synthesizing is known as genetic disorder. This can also be seen due to mutation in gene or DNA. So you are writing this. Very important. ये 9th standard में था, अभी लिखना है, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो आंसर्स तो लिखने ही पड़ेंगे. ये आंसर बुक बैक में नहीं है, टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, 9th के बेसिस पे. दैट इज द रीजन आई हैव रिटन हियर. एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन which leads to abnormal functioning or protein synthesizing is known as genetic disorder. स्ट्रक्चर में अगर रेसिपी में कोई गड़बड़ है तो डिश में गड़बड़ होगी, वैसे ही स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है. दिस कैन ऑल्सो बी सीन ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन. म्यूटेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चरल डिफरेंस. सिंपल. म्यूटेशन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. तो ये आंसर लिखना है बच्चा लोग. नाउ दे हैव आस्क्ड give the names of some genetic disorders. Examples मांग रहे हैं ये लोग. What are the examples of genetic disorders that we already know? First is albinism. हमने किया था ना स्किन पे व्हाइट कलर के पैचेस. नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया. आई डोंट थिंक सो सिकल सेल एनीमिया कोई भी बच्चा भूला होगा, बिकॉज दिस इज अ डिजीज जिसमें मैंने बताया था आरबीसी का शेप आधा हो जाता है. बहुत लोगों को ये बीमारी होती है बट दिखती नहीं है, ये मैंने सब समझाया था. और ये भी बोला था कि इसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बढ़ जाती है तो लोग थके हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बीमारी है पता नहीं चलता. महाराष्ट्र में मोर देन 21 लाख केसेस है इसके सिकल सेल एनीमिया के. फिर रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू दैट दिस पेशेंट्स विद सिकल सेल एनीमिया शुड नॉट गो फॉर रिप्रोडक्शन एंड हैव अ बेबी, वरना उनके बच्चों में भी ये बीमारी जाती है. तो ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड. With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell. I repeat, RNA की मदद से जो genes है, जो कि DNA का हिस्सा है, वो cells की formation में involve हो जाते हैं and thereby control the structure and functioning of the body. Information about protein synthesis is stored in the खुफिया जानकारी किसके अंदर है, DNA. Who has the genetic information? DNA. I am repeating this since first session. कि DNA के पास खुफिया जानकारी है. In the gene, DNA का हिस्सा है. ये जानकारी का काम क्या है,
प्रोटीन सिंथेसिस करना। Information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate proteins as per requirement is necessary for the body. बॉडी की आवश्यकता के हिसाब से, नीड के हिसाब से जो प्रोटीन्स चाहिए वो प्रोटीन बनाने की जानकारी कौन देता है? डीएनए। These proteins are synthesized by DNA through RNA. Proteins are synthesized by DNA with the help of RNA. This is called as central dogma. अभी एक्सप्लेन किया मैंने कि जो मेन रोल है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा। mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. Okay. यहाँ से देखा, अभी जो मैंने टर्म्स पहले ही सिखा दिए वो टर्म्स डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में स्टार्ट हो गए हैं। मतलब अगर मैं पहले इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो तुमको ये सेंटेंस नहीं समझ में आता, बट नाउ आई एक्सपेक्ट समझ में आ रहा होगा। सी आई रिपीट द सेंटेंस अगेन। mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. सी चलो यहाँ देखो, ये जो DNA होता है इस पे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ओके, इतने हिस्सों को न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अब समझो ये मेरा डीएनए है, मेरे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस पता है ना क्या होता है? एक के नीचे एक जो जाता है। नाउ if this is my DNA sequence of nucleotides, sequence of nucleotides मतलब क्या बचा लो? अब मेरा नाम अगर बनाना है तो ये सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट है। मैं अगर कैसे भी लिख लूं तो मेरा नाम बनेगा नहीं। यही सीक्वेंस में लिखूं अल्फाबेट तो ही मेरा नाम बनेगा ना। समझा? मतलब डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, वही सीक्वेंस में अगर न्यूक्लियोटाइड्स जाएंगे तो ही वो डीएनए अप्रोप्रिएट होगा, सही होगा, और तो ही वो डीएनए खुफिया जानकारी ऑफ द प्रोटीन्स आगे भेज पाएगा। ठीक, तुम्हारे डीएनए का स्ट्रक्चर मेरे डीएनए का स्ट्रक्चर अलग है। हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जिसमें जो जानकारी है खुफिया जानकारी इज एग्जैक्टली सेम। इसीलिए वे रिजेंबल अ पेरेंट्स। रिजेंबल मतलब क्या? उनके जैसे दिखते हैं। जुड़वा नहीं है, रिजेंबल है, आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। नाउ अंडरस्टैंड दिस, देयर इंफॉर्मेशन एंड माय इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली सेम। दैट इज द रीजन उनके प्रोटीन्स और मेरे प्रोटीन सेम बनेंगे। रेसिपी सेम है, खाना सेम, इंफॉर्मेशन सेम है, प्रोटीन सेम। प्रोटीन सेम बनेंगे तो प्रोटीन सेम दिखेंगे, इसीलिए कैरेक्टर्स सेम दिखेंगे। अब समझा? ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि न्यूक्लियोटाइड सबके जो सीक्वेंस होते हैं वो सबके अलग होते हैं। तो mRNA क्या करता है? ये कौन है? ये है डीएनए। mRNA बेसिकली क्या करता है? ये नीचे वाला स्टैंड है डीएनए और ये ऊपर वाला स्टैंड है mRNA। ठीक है, तो mRNA डीएनए के देखा देखी, मतलब समझो डीएनए कैसा है 1 2 3 4 5। mRNA डीएनए के सामने सामने अपनी जोड़ी बनाएगा, बट अपोजिट। अच्छा चलो हम नाइट्रोजन बेस ही लेते हैं ना। आई टेक नाइट्रोजन बेसिस, ध्यान दो।
A, G, T, C, A। ठीक है, अब डीएनए के एक साइड पे ये होंगे ना नाइट्रोजन बेस A, तो मैंने क्या बोला था, A किसके साथ जाता है T और G किसके साथ जाता है C, लेकिन आरएनए में T की जगह पे क्या होता है U। अब देखते हैं, ठीक है। A, तो mRNA शाना क्या करेगा, डीएनए का इंफॉर्मेशन कॉपी करेगा, ये कॉपी करने को आया इधर, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे कॉपी करेगा, A के सामने ये यहाँ पर T बनाएगा तो जोड़ी बनेगी, बट आरएनए में T बन सकता है नहीं, तो ये U बनाएगा, बन गई जोड़ी। G के सामने C बनाएगा, बन गई जोड़ी। T के सामने A बनाएगा, बन गई जोड़ी। C के सामने G बनाएगा, बन गई जोड़ी। एंड अगेन A के सामने U बनाएगा। सो ये क्या बनाया इसने, जोड़ी बनाई, ताकि डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन कौन कॉपी कर लेगा, mRNA। ठीक है, इसीलिए तो इसका नाम है मैसेंजर आरएनए, बिकॉज इसने डीएनए के सारे मैसेजेस कॉपी कर दिए, ट्रांसक्रिप्ट कर दिए। दैट इज द रीजन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये मैंने सिर्फ एक लाइन का मतलब समझाया है अब तक। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड टॉपिक का डिफिकल्टी। अब तक मैंने सिर्फ एक लाइन टेक्स्ट बुक की ये एक्सप्लेन की कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होते हैं, वो सीक्वेंसेस को mRNA कॉपी कर देता है, बस। ओके, mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. Only one of the two strands of DNA is used in the process. DNA डबल स्ट्रैंड है ना, बट मैंने सिर्फ एक स्ट्रैंड बनाया है यहाँ पे। ये डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड था, वन स्ट्रैंड, टू नहीं, वो मैं समझाऊंगी बाद में। Only one of the two strands of DNA is used in this process. The sequence of nucleotides and mRNA being produced is always complementary. Sequence of mRNA being produced is always complementary to the sequence of the DNA. मतलब complementary का मतलब क्या, सामने जो जोड़ी बनाता है। तो mRNA का सीक्वेंस देखो बच्चा लोग, U, C, A, ठीक है, ये तीन लेते हैं अल्फाबेट। तो U के सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, A है, A, यस। C के सामने क्या होना चाहिए, G है, G, यस। A के सामने क्या होना चाहिए, T है, T, यस। समझा? mRNA में जो चीजें हैं वो डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, डे इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय नाइट, मतलब दिन के बाद नाइट आती है और नाइट के बाद डे, दोनों साथ नहीं आते, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं हो सकते। डे वुड नॉट कंप्लीट अगर नाइट नहीं होगी तो। वैसे ही डीएनए को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है mRNA। समझ में आया? जोड़ी बना रहा है, और जोड़ी सेम से नहीं, अपोजिट से बनती है। ओके, the sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. Besides, there is a uracil in RNA. ये मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया। RNA में T की जगह क्या है, U, उसका फुल फॉर्म क्या है, uracil, instead of thymine in DNA. This process of RNA synthesis is called as transcription. ये पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डू नॉट थिंक कि मैंने ट्रांसक्रिप्शन समझा दिया है, मैंने तुमको सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के लिए तैयार किया है। अब ट्रांसक्रिप्शन तो शुरू होगा, जो बेस से स्टार्ट करेंगे हम। अब तक तो हमने सिर्फ एक पैराग्राफ में इन लोग ने जो किया, पहले तो वी हैव अंडरस्टूड जो 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक था, वरना तो हम ये ही नहीं समझ पाते, ये सब बाउंस कर जाता। न्यूक्लियोटाइड क्या है वही बाउंस कर जाता अगर हम पहले देखते नहीं तो। यूरासिल क्या चीज़ है वो नहीं समझ में आती। अभी हमको समझ में आ गया है
कि आरएनए 3 टाइप के है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, डीएनए के सेगमेंट को जीन बोलते हैं, और डीएनए में खुफिया जानकारी है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जिससे प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए आरएनए की मदद लेगा। इस थियरी को सेंट्रल डॉगमा थियरी कहते हैं। ये सब हमने आज समझा है। बी वेरी मच एक्यूरेट while listening these videos बच्चा लोग, because it is a difficult topic. I told you 1 page of this chapter, but the most difficult part. So be accurate, be attentive, and rewatch. Okay. Now we've understood the basic part of the transcription. What I was planning that once transcription, like the overview and the 9th standard का brushing up part is done, only then I can start with the further topic. So what you were doing? First session में जो साइंटिस्ट के नाम थे उन्होंने जो किया वो, और ये जो आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने, आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। Once this is done, ये पूरा स्ट्रक्चर और ये सब कुछ समझ में आ जाता है, only then I can move further with ahead topics. Like topics ahead जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू करने से पहले मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि सेल के कौन से हिस्से में ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ सेल के अंदर न्यूक्लियस में हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक फ्लो चार्ट दिया था 9th स्टैंडर्ड में, मैंने सेल ड्रॉ किया था। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, उसके अंदर क्रोमैटिन, ये सब किया था मैंने। ये मैं वापस बना दूंगी बोर्ड पे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में, ताकि जब भी मैं स्टार्ट करूंगी न्यूक्लियस के पार्ट से तो यू नो। बट स्टिल इफ यू हैव दैट नोट्स जो मैंने 9th में लिए थे, वेल एंड गुड। इफ नॉट, डू नॉट वरी, मैं वापस ब्रशअप करवाऊंगी। यू डोंट हैव टू स्ट्रेस कि ये 9th 10th को कैसे मिलाना है, वो काम मेरा है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू कीप एक्यूरेसी एंड रिविजन। तुमको बहुत ज़्यादा रूटीन में रहना पड़ेगा तो टॉपिक के साथ में ग्रास्प रहेगा, वरना थोड़ा टॉपिक छूटा पूरा का पूरा चैप्टर छूट जाएगा। ऐसा नहीं करना है। डीएनए आरएनए को पकड़ के रखना है, कॉन्सेप्ट्स को समझ के रखना है। तुमको डीएनए का डायग्राम एक बार प्रैक्टिस करना है। तीनों आरएनए जो 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में वो लर्न करने हैं। आज जो मैंने नोट्स दिए वो टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। मेक श्योर यू आर कीपिंग दोज नोट्स रेडी, बिकॉज बिल्कुल उसके नीचे मैं ट्रांसक्रिप्शन के नोट्स दूंगी। सीधा अगर ट्रांसक्रिप्शन का नोट्स लिखा और ऊपर की, हर चीज़ की होनी चाहिए। की क्या होती है? जो आगे की चीज़ को समझने के लिए आसान होती है। की इज़ फॉर द लॉक, ट्रांसक्रिप्शन इज़ आर लॉक, जिसकी की मैंने आज के लेक्चर में दी है तुमको। तो जब मैं लॉक खोलूँगी तो तुम्हारे पास की होनी चाहिए तो समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। सो डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, वो न्यूक्लियोटाइड्स का जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया था, वो सब चीज़ें पहले वाले पार्ट में। इफ़ यू हैव नॉट टेकन अ स्क्रीनशॉट येट, वापस बैक जाके स्क्रीनशॉट लो, टेक्स्ट बुक नोटबुक में अच्छे से हैंडराइटिंग में उतारो, बॉक्सेस बनाओ, बी नीट विथ योर नोट्स, तो आगे ग्रास्पिंग रहेगा। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड कीप revising all the things that have been completed in the topic. Bye bye.